إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض وکان یعتکف کل عام عشرہ فاعتکفوا 20 فی عام الذی قبض رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں ایک بار قرآن پڑھتے مکمل کرتے اور آپ جو ہے آخری 10 دن جو ہے اعتکاف کرتے۔ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک حدیث بیان کی، اس کا مختصر سا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے رمضان اور روزوں کے مسائل سے متعلق، جس میں آج ہم دیکھنے والے ہیں اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف ایک جگہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں، کیونکہ بندہ عبادت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت میں لگا رہتا ہے۔ وہ ایک جگہ مقیم ہو جاتا ہے اور جو وقت مقررہ ہے اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں ہلتا ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی وہ تفصیلاً اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان میں ایک بار پورا قرآن پڑھتے۔ جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ معاملہ کیسے ہوتا؟ جبرائیل علیہ السلام آتے اور جتنا قرآن نازل ہوا اتنا قرآن رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دہراتے، پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 2 مرتبہ اسے دہرایا۔ جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اس طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ ہمیشہ آپ 10 دن کا اعتکاف آخری کے 10 دنوں میں جو ہے مکمل کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ جہاں پر جس نے اعتکاف کا ارادہ کیا وہ فجر کی نماز سے لے کر اعتکاف کی شروعات کرے گا جس مسجد میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جاتے، یعنی آپ اعتکاف شروع کر دیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا بستر اور چارپائی استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بستر بچھایا یا بستر بچھاتے۔ اسی طرح ستون توبہ مسجد نبوی کے ایک ستون کا نام ہے، اس کے پیچھے آپ کی چارپائی رکھ دی جاتی۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، یعنی پلنگ وغیرہ کا بھی استعمال اعتکاف میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس شرط ہے کہ وہاں پر جگہ ہو، مناسب ہو اور تکلیف نہ ہوتی ہو۔ چلیے،
एहतिकाफ करने वाले की बीवी रात को मुलाकात के लिए आ सकती है। एहतिकाफ करने वाला बीवी को घर तक छोड़ने के लिए मस्जिद से बाहर आ सकता है। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में थे। मैं रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई और बातें करती रही। वापस जाने के लिए उठी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ने के लिए उठकर खड़े हुए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी जो एहतिकाफ में बैठा है उसके घर वाले आकर उससे मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ मुलाकात करेंगे, कुछ तोशा देना है तो दे सकते हैं, कुछ बातें करना है अहम तो बातें कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर वाले आकर आपके साथ बैठ जाएंगे और आप बैठे दोनों साथ में मोबाइल पर या गुफ्तगू चल रही है, फिर इसकी गीबत और चुगली और ये चीजें नहीं। आप देखेंगे अक्सर एहतिकाफ में लोग क्या करते हैं, वो तमाम बुराइयों के काम करते हैं और कहते हैं कि हम एहतिकाफ में। आप देखिए मस्जिद में बैठते हैं, फिर बेवजह की गुफ्तगू, पूरा ग्रुप बन जाता है, जबकि एहतिकाफ में क्या करना है, नमाज पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, ठीक है, कोई दीनी किताब है आप उसको पढ़ सकते हैं, कुछ दीनी मसले मसाइल की गुफ्तगू आपस में बैठकर कर सकते हैं, अल्लाह की याद कर सकते हैं आपस में बैठकर, ठीक है। ये एहतिकाफ यानी मोतकिफ ये काम कर सकता है। मस्जिद के अंदर ही जो बयान चल रहा है मोतकिफ उसको बैठकर सुन सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप देखिए एहतिकाफ के बहाने लोग बैठ तो जाते हैं, लेकिन एक तरह की वो पिकनिक मना रहे हैं। ये कहाँ से एहतिकाफ होगा? मस्जिद की छत पे चले जा रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, फिर उनके दोस्त आ रहे हैं, फिर वो चीजें कर रहे हैं जो कि हराम है। सिगरेट, तंबाकू वगैरह शाम में सप्लाई होता है मगरिब के बाद। जिन लोगों को आदत रहती है उसके बगैर उनको रह नहीं जाता है, तलब बोलते हैं ना उसको, फिर बाहर के लोग लाकर दे रहे हैं। तो आप ये क्या एहतिकाफ का हमने मजाक बना दिया। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। अहम गुफ्तगू जरूरी बातें घर वाले आकर आपसे कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, कुछ आपको तोशा वगैरह खाना भी दे सकते हैं एहतिकाफ के अंदर। इसी तरह एहतिकाफ करने वाला अगर जरूरी काम से बाहर निकले और रास्ते में किसी मरीज से मुलाकात हो जाए तो चलते चलते इसका हाल पूछ लेना दुरुस्त है, इसमें हर्ज नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ की हालत में बीमार के पास से गुजरते, इसका हाल पूछ लेते, लेकिन हाल पूछने के लिए ठहरते नहीं थे, मतलब चलते चलते बात कर लेते थे। अबू दाऊद की रिवायत। आप एहतिकाफ के लिए बैठे हुए मस्जिद में, अब एहतिकाफ में आप बैठेंगे तो जरूरत का सामान भी लगेगा, साबुन है, पेस्ट है या मंजन है जो दांत की सफाई के लिए, मिसवाक है, दीगर चीजें। अब बाजू में ही मस्जिद के करीब में कुछ दुकान वगैरह कोई चीज है तो आप गए वहां से कुछ लेने के लिए, या मस्जिद के थोड़ा सा बाहर निकल कर आकर आप रुके और उतने में कोई मरीज आपको मिल गया, उसका आपने हालचाल पूछ लिया, खैर खैरियत पूछ ली अपने मुसलमान भाई की, बस उसके लिए उसके साथ खड़े नहीं हो जाना। नहीं तो मस्जिद के बाद लोग खड़े हाथ बांध कर, आपने देखा होगा, है ना, ये दुरुस्त नहीं है। चलते चलते बस मुख्तसर से वक्त में बात की और वापस अंदर चले गए। खामखा आपको वहां पर निकलना नहीं है बेवजह। इसी तरह मर्दों को एहतिकाफ मस्जिद में ही करना चाहिए, औरतों के लिए भी एहतिकाफ के लिए मस्जिद में जगह होनी चाहिए, लेकिन अपने पास ये इंतजाम नहीं होता है। रमजान में एहतिकाफ के लिए रोजा रखना जरूरी है। मतलब कोई रोजा नहीं रख रहा और एहतिकाफ में बैठा तो ये लॉजिकल ही नहीं है। मतलब स्टेप 1 ही नहीं किया और स्टेप 2 कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये दुरुस्त नहीं रहेगा। रमजान में एहतिकाफ के लिए रोजा रखना जरूरी है। हालत एहतिकाफ में बीमार पुरसी के लिए जाना, जनाजे में शरीक होना, ठीक है, बीवी से मुजामत करना, बशरी तकाज़ों के बगैर एहतिकाफ की जगह से बाहर जाना मना है। मतलब एक इंसान अपनी बीवी से मुलाकात तो कर सकता है, लेकिन वो ताल्लुकात कायम नहीं करता है जो हस्बैंड वाइफ के एक चार दीवारी के अंदर होते हैं, वो उसके लिए जायज नहीं है। तो वो मतलब होता है ना, रमजान में रोजे में इस चीज से मना किया गया है ख्वाहिशात से, लेकिन एक इंसान अपनी ख्वाहिशात यानी अपनी बीवी से वो मुकम्मिल कर सकता है रोजे के बाद, यानी इफ्तार होने के बाद से सहर तक। लेकिन एहतिकाफ की हालत में वो भी मना है, वो भी जायज नहीं है। और किसी के जनाजे में चले जाना ये भी दुरुस्त नहीं है, या किसी से मुलाकात करने के लिए बीमार के लिए उसके घर पे जाना ये भी जरूरी नहीं है। रास्ते में कोई मिल गया बीमार तो उससे हाल पूछते हुए चले गए तो चलेगा, लेकिन खास तौर से किसी से जाकर मुलाकात, इसकी इजाजत एहतिकाफ के अंदर नहीं है। ये चंद चीजों से मना किया गया है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं एहतिकाफ करने वाले के लिए सुन्नत ये है कि वो बीमार पुरसी को ना जाए, जनाजे में शरीक ना हो,
बीवी को ना छुए, न इससे मुजामत करे, एहतिकाफ की जगह से ऐसे जरूरी काम यानी क़ज़ाए हाजत, फर्ज, गुस्ल वगैरह के बगैर ना निकले जिसके बगैर चारा ही ना हो। एहतिकाफ रोजे के साथ ही होता है और जामा मस्जिद में होना बेहतर है, या उस जामा मस्जिद में होता है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। अब जामा मस्जिद, आजकल शहर बहुत बड़े हो गए, हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि सब जामा मस्जिद में पहुंचे, वरना जामा मस्जिद में जगह नहीं रहेगी। ठीक है, तो जहां भी करीबी मस्जिद है वहां पर आप एहतिकाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ जाना मना है मैंने आपको बता दिया। इंसान सिर्फ गुस्ल के लिए बाहर निकल सकता है, क़ज़ाए हाजत मतलब पेशाब पाखाना जिसको हम कहते हैं, लैट्रिन या टॉयलेट वगैरह के लिए। कुछ जरूरी जो इंसान के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं, उसके लिए वो एहतिकाफ के लिए बाहर जा सकता है। मस्जिद में टॉयलेट नहीं है, दूर है, मस्जिद से निकल कर जा सकता है। गुस्ल खाना मस्जिद में नहीं है, थोड़ा दूर है, जा सकता है। लेकिन बस उन चीजों के लिए जो जरूरियत जिंदगी है, और किससे मना कर दिया गया वो पहले आपके सामने बयान हो गया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। औरतों को भी एहतिकाफ करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है कि आपके साथ बाज बीवियों ने भी एहतिकाफ किया है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल की अज़वाज कैसे करती थी एहतिकाफ? क्योंकि अज़वाज मुतर्रात यानी हमारी जो माएँ हैं, उनके जो घर थे, उनके हुजरे थे, वो मस्जिद नबवी से लगकर थे, उसी के अंदर आते थे। तो वो अपने हुजरे से मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर जो है क्या करती थी, कपड़ों को बांध देती थी, जिसको हम कहेंगे पर्दों को, और उसी के अंदर वो एहतिकाफ करती थी। यानी घर में एहतिकाफ नहीं होता है, वो मस्जिद में एहतिकाफ करती थी, लेकिन वो एहतिकाफ का हिस्सा मर्दों से काफी दूर होता था। ठीक है, तो एहतिकाफ करने से हमारे पास तो नहीं है औरतों के लिए, लेकिन बेहतर वही है, औरतों के लिए भी एहतिकाफ मस्जिद में ही करना चाहिए। अब हालात नहीं है, जगह नहीं है, और पॉसिबिलिटी नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो फिर क्या करें? एहतिकाफ ना करते हुए आप आम नफली इबादतें करें, घर में रहकर एक जगह बैठे इबादत करें। इंशाअल्लाह ताला हालात ना होने की वजह से या कुछ भी मजबूरियों की वजह से अगर आप मस्जिद में एहतिकाफ नहीं कर सके, तो इंशाअल्लाह नीयत की बुनियाद पर आपको अजर मिलेगा उसके बराबर, लेकिन वो एहतिकाफ नहीं होगा, मस्जिद में होना उसके लिए जरूरी है। चलिए।